Namaskar, a very warm welcome to all our viewers. I'm Nupur Kulshresht and joining me today are our sign language interpreters Anushka and Neetu. You can look at the screen. Anushka is there with me and Neetu will join us later. Dear viewers, you are watching us live on eVidya channels 6 to 12 and we are also streaming live on our NCRT official YouTube channel. We warmly welcome you all to this special online training program, and the theme of the program is Rethinking Mental Health, Multiple Sclerosis and Accessibility. This is our 5-day online training program, and each day we will explore different dimensions and aspects related to this topic. As we all know, mental health is really essential to live a happy, healthy and peaceful life. We all faces challenges in our everyday lives, and these challenges vary across different age groups, whether they are children, parents, teachers, youngsters, and these challenges impact our mental health, and that is why it is important to take care of your mental well-being, as we all know that our mental health is as important as our physical health, and it is very important to take care of your health. And when you are mentally good, mentally sound, then our relationship with ourselves becomes, it improves, and when we are sound, so our relationship with the society or socially we becomes richer, and we can also say that we find it easier to progress on our spiritual journey. And that is why we need to keep rethinking and reflecting on our mental health constantly, continuously, and keeping this in mind, we will focus on our theme, that is Rethinking Mental Health, Multiple Sclerosis and Accessibility. Under this theme, we will discuss our today's topic, and today's topic is Rethinking Mental Health, Global Accessibility and Multiple Sclerosis. Before we proceed, dear viewers, if you have any queries related to this topic, feel free to call us on this number 8800-440-559, and also you can mail your queries to dts.isl31@cit.nic.in. And now I would like to invite our experts to share their valuable insights with us. I am pleased to invite our first expert, Professor Bharti Kaushik, Head of MPT at CIT NCERT. Namaskar, ma'am. Welcome to this session. Namaskar. We are delighted to have you with us today, ma'am. And next, I'm happy to introduce our second guest, Dr. Priyanka Lenka, Assistant Professor, Clinical Psychology at the National Institute of Mental Health Rehabilitation, I repeat it again, NIMHR, Madhya Pradesh. And now I would like to, Namaskar, ma'am, welcome to the session. Priyanka, ma'am. Thank you, madam. Welcome to the session, ma'am. We look forward to learning from your valuable insights. And now I'm honored to welcome our third guest, Ms. Bipasha Gupta, Chairperson of the Multiple Sclerosis Society of India, Delhi Chapter, MSSI. Namaskar, ma'am. Welcome to the session. Thank you. We are grateful to have your presence, and dear viewers, there will be also an engaging quiz activity, and I will tell you and discuss and share all the details with you towards the end of this session. So now I'll start this session. Before further delay, I would like to ask my first question to Bharti ma'am. Bharti ma'am, what is the relevance of this 5 days online training program on the rethinking mental health, multiple sclerosis and accessibility? Yes, the very first question, सबसे पहला सवाल ही बहुत रेलेवेंट है इस पूरे 5 दिन के प्रोग्राम के लिए। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, सभी व्यूवर्स से फोल्डेड हैंड एक रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में प्लीज़ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के मैसेजेस ना दें, अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क करें। वी आर ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस एंड योर कनेक्शन विद अस दैट यू आर वॉचिंग लाइव दिस सेशन। लेकिन प्लीज़ ये ना करें, इससे क्या होता है, आपके जो भी रेलेवेंट सवाल हैं वो कहीं आपके इन मैसेजेस के बीच में दब जाते हैं। तो प्लीज़ ये चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें सिर्फ अपने सवाल पूछने के लिए। अब आते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों। आप जानते हैं मई का महीना चल रहा है। मई इज़ अ मंथ जिसमें
हम स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, awareness about multiple sclerosis, and also awareness about accessibility. So this entire month of May is dedicated to these three issues. और ये ऐसे concerns हैं जिनको हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बहुत जोर शोर से उठाती है। एक्सेसिबिलिटी यानी सुगम्यता, हर चीज़ में सुगम्यता होनी चाहिए, फिर वो सभी के लिए सुगम्य होना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं रास्ते पे तो आपके पास ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो भी आप अपने गंतव्य पर सही से और सरलता से पहुंच जाएं। शायद इसीलिए, शायद नहीं, पक्की बात है, इसीलिए जिन लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया है उनको पता है कि मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर येलो टाइल्स होती हैं जिनको आप अपने जूते और चप्पल से भी महसूस कर सकते हैं। वो क्यों हैं? वो सिर्फ इसीलिए हैं, यात्रा को सुगम्य और सुविधाजनक सभी के लिए बनाने के लिए। इसीलिए तो जब आप मेट्रो की अनाउंसमेंट सुनते हैं तो आप उसको देख भी पाते हैं। ये भी एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा महीना मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और सुगम्यता पर डेडिकेटेड है। तो इस बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे RPWD एक्ट 2016 का भी एक पार्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी पार्ट है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी कक्षाएं, हमारे विद्यालय सभी के लिए सुलभ और सुगम्य हो जाए। तो इसीलिए ये वाला कोर्स 5 दिन का हमने करने का सोचा। और ये कोर्स हम करने का हम सोच ही रहे थे, हमने तो अपनी पूरी तैयारी की थी, लेकिन आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेस आए हैं वो ओवरवेलमिंग है, जो हमें ये बताता है कि हाँ, हमारी सोच सही है। सो हमारे पास 12,000 प्लस रजिस्ट्रेशंस आए हैं आप लोगों के, और वो भारत भर से तो हैं ही हैं, लेकिन भारत के अलावा कुछ और देश भी हैं जहाँ से भी हमारे पास कुछ कुछ रजिस्ट्रेशंस आए हैं। जैसे हमारे पास UAE से आए हैं, बहरान से आए हैं। नंबर चाहे थोड़ा सा कम ही है बाहर के देशों का, लेकिन फिर भी ये दर्शाता है कि हम सही दिशा में सोच करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि अभी ये जो मंथ है हमारा मई, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, और साथ ही इससे जुड़ी जो भी हमारी इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बिल्कुल हम जानेंगे। लेकिन हमने जैसे शुरुआत की कि मेंटल हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, और क्यों बार बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यही सोच कर चलते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, मतलब क्या हुआ है तुम्हें, अक्सर ये सवाल होता है। और अभी भी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपर्ट से तो एक ये चीज़ है मैम कि लगता है कि कोई समझता ही नहीं है कि या दिमागी तौर पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हमें कोई समस्या है। तो आज हम बिल्कुल इसको समझेंगे, और जो मेरा अगला सवाल है वो हमारी जो एक्सपर्ट हैं प्रियंका मैम, उन्हीं से है। और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि व्हाई इज़ मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। अब मैं आंसर करने से पहले मैं अपना बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस टीम में मीटिंग में बैठने का, मेरी जो वक्तव्य रखने का मौका मिल रही है। आई वुड लाइक टू थैंक टू NCERT and the E-Vidya Ministry of Education and NIMHR Director Sir Akhilesh Kumar Shukla sir. So the mental health, मैं बहुत श्योर हूँ कि हम लोग सभी ने ये एक्सपीरियंस किए होंगे। एक्सप्रेशन जैसे क्या आप मेंटल हो, या फिर क्या आप थोड़ा सा लग रहा है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये जो सारे जो हम जो मेंटल शब्द को जिस तरह से यूज करते हैं, तो उसमें हमको कुछ रीडिफाइन करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे हमको पता है कि जो हेल्थ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ इलनेस, सिमिलरली मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, whether both physical or the mental disability, तो ये इंडिविजुअल को पूरा अफेक्ट करता है। तो इंडिविजुअल का कैसे अपने डे टू डे एक्टिविटीज निभाएंगे, कैसे सोसाइटी में अपना पूर्ण 100% कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, तो ये सारी चीज को काफी अफेक्टेड करते हैं।
तो हमको ये वो जानना जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ से हम अच्छे से लाइक ध्यान लें, क्योंकि हमको पता है कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ को, इनविजिबल डिसेबिलिटी, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है। शारीरिक जो अगर फिजिकल इलनेस होता है या फिजिकल डिसेबिलिटी होता है तो ये दिखाई देता है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोग सभी के लिए कि मेंटल हेल्थ को समझे और उसका इम्पोर्टेंस को हम अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू मैडम। बिल्कुल मैम, हम सब बहुत बिज़ी हैं अपनी लाइफ्स में, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं लेकिन हमें फिर भी अपनी जिस तरह से हम घर से निकलते हैं पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, उसी तरह से हमें निकलते वक्त ये भी सोचना है कि मेंटली हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने टास्क को हैंडल करने के लिए, और इस तरफ अटेंशन पे करना क्यों ज़रूरी है। अब मेरा अगला सवाल है बिपाशा मैम से। मैम, कुड यू प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? Thank you. First of all, thank you to NCRT and all the organizers for holding this session. It is very, very important that everybody knows about multiple sclerosis, क्योंकि ये काफ़ी serious issue है for our country as well as for the world. Multiple sclerosis actually एक chronic autoimmune problem है, disease of the central nervous system, the brain and the spinal cord, जहाँ immune system by mistake attacks द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हुआ द प्रोटेक्टिव शीथ जो हमारे नर्व के अराउंड होता है, वो होता है एक शीथ होता है, उसको अपना ही टी सेल उसको ईट अप करने लगते हैं, तो वहाँ कोरोशन होता है। तो इट डिस्टर्ब्स सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। जैसे आपके एक लाइव वायर होता है जिसके ऊपर कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग हट जाए तो आपके नीचे कॉपर वायर्स दिखता है, वहाँ हाथ लगाने पर आपको शॉक लगेगा, या वेरेवर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, दैट लाइट विल फ्लिकर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पासिंग प्रॉपरली। सिमिलरली MS is something which stops the nerve from sending the messages to rest of your body. इसको बोलते हैं multiple sclerosis या MS. Now MS, in the world we have 2.9 million people suffering from MS. इंडिया में हमारा registration अभी तक clear नहीं है, but we have some about nearly 4,000 people registered with us with whom we help. इसमें मोस्ट कॉमन होता है एज 20 to 50, बट दैट डज नॉट मीन कि 20 to 50 में ही होता है, 20 below 20 भी होता है. We have the youngest MS person who actually enrolled with us was 2-year-old. तो but you cannot figure out sometimes कि इनको क्या दिक्कतें हैं. यंगर एज में वो खेल खेल में डिफरेंट सिचुएशन में लोग इतनी नोटिस नहीं करते हैं, बट दैट इज़ अ 5% only. School going children below 18, 5% of them face MS from some time in some time or the other in their lifetime. तो बाकी it happens more in women. दिखा गया कि for every 2 women 65 ratio is 65-35, 35 male and 65% female. तो ओके और मैम, एक चीज़ आपसे आपकी बात सुनकर के मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे हम कहते हैं इनविजिबल कंडीशंस, जिनको हम आंखों से देख कर के शायद बहुत ज़्यादा नहीं पहचान पाते हैं. मेंटल हेल्थ की बात आई तो भी प्रियंका मैम ने भी यही कहा कि ये इनविजिबल कंडीशन है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी शायद एक ऐसी ही इनविजिबल सी कंडीशन है. क्या आप सहमत हैं इस बात से? या मैं सहमत हूँ, बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस हैज़ गॉट 2 एस्पेक्ट्स, इनविजिबल एंड विजिबल बोथ. ओके. हाँ, इनविजिबल कंडीशन आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इट इज़ हैपनिंग इनसाइड. इट इज़ समथिंग लाइक ओके प्रॉब्लम लाइक पेन्स एंड एक्स, डीप फटीग, थकान बहुत ज़्यादा होता है इसमें. ज़रा से काम करे थक जाते हैं, बार बार बैठने का मन करता है, ये सब चीज़ है. लैक ऑफ एनर्जी इन वेरी यंग पीपल विच इज़ लिटिल अनयूजुअल. जी. हाँ, और नेचुरली इमोशनल अपहीवल होता है इसमें जो आपको फिर दिखाई नहीं देता है. सो दीज आर इनविजिबल डिसेबिलिटी. कॉग्निशन प्रॉब्लम होता है, ब्लैडर प्रॉब्लम होता है, ठीक है. और विजिबल जो है उनको आपको दिखेगा क्योंकि चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कतें होने लगता है, एंड बैलेंस
प्रॉब्लम होता है, स्पीच में प्रॉब्लम होता है, और सबसे शुरुआत में तो आंखों में प्रॉब्लम होता है. सडनली यू विल फाइंड अ ब्लर्ड विजन एंड अ लाइन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और 2-4 दिन में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है. ठीक हो जाते तो सब भूल जाते हैं. बट इफ यू कम अप विद दैट कि एक बार हुआ, दोबारा जब हुआ, इमीडिएटली दैट शुड बी चेक्ड अप. और मैम मुझे लगता है जैसे अगर मेरी ही आंखों के सामने वो लाइन आ रही है और 2 दिन बाद चली जाए वो लाइन, तो मैं अगर छोटी बच्ची हूँ, जैसे आपने कहा 2 years old में भी है या हमारे टीनेज में भी है, तो भी शायद हम उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम शायद नहीं भी बता पाते हैं उस तरीके से. तो मुझे लगता है इसीलिए भी हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हैं. हाँ, एक बच्चा अगर बार बार बैठ जा रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, नॉट वॉकिंग, नॉट रनिंग, यू मस्ट नोटिस, क्योंकि उसमें कुछ तो है. अ चाइल्ड ऑफ से इवन 12, 13, 14, 18, दे शुड बी वेरी वेरी एक्टिव. वो चारों तरफ घूमते हैं, ये करते हैं, घर में भी एक्टिव रहते हैं, बाहर भी. पेरेंट्स को वो नोट करना चाहिए, टीचर्स को वो नोट करना चाहिए कि दिस चाइल्ड who was very active is slowly becoming inactive and she or he is always tired. तो इसी से आपको इसको नोटिस में लाना चाहिए कि दिस चाइल्ड इज फेसिंग दिस, प्लीज गेट इट चेक्ड अप. ओके, सो मैम सॉरी नुपुर, यहाँ पर ना बस एक छोटी सी चीज़ और मैं मैम से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत एकदम नया सा शब्दावली मेरे लिए तो खैर नहीं है, लेकिन हमारे शायद व्यूवर्स के लिए नई शब्दावली होगी जिसके बारे में हम और जानना चाहेंगे. आपने कहा कि अगर बच्चा पहले खेल रहा है काफ़ी अच्छे से और अगर सडनली वो इतना ज़्यादा नहीं एनर्जेटिक दिख रहा है, अच्छे से नहीं खेल कूद रहा है, तो ये बच्चे की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी आपको जोड़ना है और उसके पीयर्स के साथ भी जोड़ना है ना. कि बाकी तो अगर 6-7 साल के बच्चे से हम ये एंटीसिपेट करते हैं कि अच्छा ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, साथियों के साथ भी खेल रहे होंगे, अगर बाकी साथी कक्षा में एंगेज्ड हैं, खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं और ये सडनली 2 बॉल फेंक करके बैठ जाता है, तो क्या, और ये अगर अक्सर हो रहा है, 1 या 2 बार का इंसिडेंट तो चलिए आप मान लीजिए थक गया या थोड़ी बीमारी भी हो सकती है, और अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो क्या इसको फिर हमें काउंसलर्स के पास या डॉक्टर्स के पास हमें दिखाने की ज़रूरत है? यस, काउंसलर के पास से भी ज़्यादा डॉक्टर के पास थोड़े से सलाह लेना चाहिए. एक्चुअली बहुत छोटे जब होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. दे इवन 16, 17 दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. वो सोचते हैं कि ठीक है, आई एम ग्रोइंग अप, सो दीज आर पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड ऑल दैट थिंग. बट आप अगर नोटिस करते हैं, पेरेंट्स अगर नोटिस करते हैं, उसको ज़रूर डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, डॉक्टर को भी क्विक डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि देर जितने होते हैं फिर इसके इसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होता है. मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई क्योर नहीं है एट द मोमेंट अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट इज़ नॉट कंटेजियस ऑल्सो. छूत का बीमारी नहीं है, इट इज़ अ नर्व ओरिएंटेड थिंग जिसको हम दवाइयों से ट्रीटमेंट करके इसको वहीं पे रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने अर्ली आप इसको जानेंगे उतने ज़्यादा आप इसको मैनेज कर सकते हैं. सो मैम, यहाँ से एक सवाल और उपजता है मेरे मन में कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या जब बच्चा पैदा होता है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं मदर के भी, तो क्या वहाँ पर हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है, वो सुना भी नहीं है हम लोगों ने, वो वहाँ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट इट इज़ बिहेवियरल ऑल्सो, है ना जी. और धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाते हैं, यंग पर्सन ऑफ 20 कैन एक्सप्रेस मोर कि मुझे हर समय इधर पेन होता है, उधर नमनेस फील करते हैं. जो छोटा बच्चा जो है वो नहीं कर सकते. हम लोग पेट में कोई नमनेस है तो हम उनको कहेंगे तुमने गलत खा लिया, तो इसीलिए तुम्हारा हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा. वो कल परसों ठीक हो गया तो फिर हम नोट नहीं करते हैं जी. सो वी मस्ट नोट ऑल दीज थिंग्स जी. तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं मैम कि जो बच्चों की ग्रोथ है और हर एक डिफरेंट एज ग्रुप में उनकी जो ग्रोथ है वो अलग तरह से होती है, और जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उनकी एक्टिविटीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि वो और बच्चों की तरह से एक्टिविटी कर पा रहे हैं कि नहीं, जिससे कि हम पेरेंट्स का थोड़ा सा इस बात पर ध्यान जाए कि किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, इस पर वो ध्यान दे सकते हैं. बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी हो, जैसे कि हम रीथिंकिंग
मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर बार बार विचार करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है कि थोड़ी सी राह आसान हो, उसके लिए बिल्कुल हम बात करेंगे भारती मैम से कि हम एक्सेसिबिलिटी को सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखो सुगम्यता की जहाँ तक हम बात करते हैं, अब क्योंकि हम NCERT में हैं और मैं फैकल्टी NCERT हूँ, तो मेरी जो भी बातचीत होगी वो स्कूल के दायरे में होगी, स्कूल और स्कूल के आसपास के दायरे में होगी। तो विद्यालयों को सुगम्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे और टीचर्स कई बार कहते हैं कि हमारी तो अपने स्कूल्स में इतनी वॉक हो जाती है कि लिफ्ट है नहीं, हमें स्टेयर्स से चल करके जाना होता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आजकल के विद्यालय हमारे बहुत बदल रहे हैं, हमारे स्कूल्स बहुत बदल रहे हैं। आजकल हमारे स्कूल्स में वो बच्चे भी हमें दिखाई देते हैं जो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो व्हील चेयर पर आते हैं। हमारे विद्यालयों में आजकल मुझे ऐसे बच्चे भी दिखते हैं जो वॉकिंग स्टैंड लेकर के चलते हैं या जो क्रचेस की सहायता से चलते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी दिखते हैं जिनमें स्वलीनता है। अब स्वलीनता एक ऐसी स्थिति है जिसको हम अंग्रेजी में ऑटिज्म कहते हैं, जहाँ पर बच्चे को दिशाएं समझने में भी कई बार दिक्कत होती है। कई बार उसको मौखिक नहीं समझ में आता, उसको देख करके दिशा और निर्देश उसको समझ में आते हैं और वो अपने रूटीन का बहुत पक्का होता है। ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो बाकी स्थितियों के साथ ओवरलैप करते हैं। जैसे अगर लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसको भी आप इसी तरह के कुछ बिहेवियर्स आप देखते हैं, या अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, श्रवण में कुछ दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो उसको भी आपकी मौखिक भाषा समझने में दिक्कत आएगी। तो आप विद्यालयों को सबके लिए आपको सुगम्य बनाना है और उसके लिए आपको करना क्या है, आवश्यकताओं पर ध्यान देना है कि अगर मौखिक निर्देश बच्चा नहीं समझ पा रहा है सुन करके, तो क्या हम उसे दिखा दें, क्या हम डायरेक्शन चार्ट बना लें अपने ही विद्यालयों में। कई बार तो मेरे साथ भी होता है, कहीं किसी विद्यालय में जाना होता है और मुझे सपोज कक्षा 6ठी B में जाना है, तो मेरे को 5-6 मिनट लगते हैं ये समझने में कि मैं ये कक्षा कहाँ, कौन से फ्लोर पर है, कौन से विंग में है। तो इसका अगर आप एक चार्ट मानचित्र जैसा बना लें तो क्या वो सरल नहीं हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। हम सभी प्रगति मैदान तो गए ही होंगे, जब भी मेले लगते हैं तो हम मेले का मानचित्र देखते हैं ना, फिर हमें पता लगता है किस हॉल में क्या है। क्या हम उसी तरह से एक चार्ट बना सकते हैं विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है। सुगम्यता एक तो इस छोटी सी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपने देखा होगा हमारे साइन बोर्ड्स कमरे के बाहर लगे होते हैं, ऊपर लगे होते हैं। अगर वैसा ही एक साइन बोर्ड ब्रेल में आपकी ऊंचाई, एवरेज औसत ऊंचाई के आसपास लग जाए तो आप छू करके उसको महसूस कर सकते हैं। ये भी एक विद्यालय में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का एक सरल तरीका है। दूसरा सरल तरीका जो शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है और जिसको पर्सनली मैंने बहुत जगह इस्तेमाल किया, मैं जो बोल रही हूँ मैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती भी हूँ, या जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ वो मैं बोल भी रही हूँ। और उसके बावजूद भी अगर मैं किसी बच्चे तक मेरी बात पहुँचाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले से प्रिपेयर्ड जो नोट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, जो मुझे पता है कि मेरे आज के 45-50 मिनट के पूरी कक्षा के जो मुख्य संदेश है, मुख्य परिभाषाएं हो गई या कंटेंट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, क्या मैं वो पहले से लिख करके अगर बच्चे को दे दूं तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हम टीचर्स को लगता है नहीं, ऐसा करने से शायद बच्चे क्लास में अनुशासन में नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बच्चों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी कक्षाओं का वातावरण सुगम्य बनाएंगी। और यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कक्षाओं के अंदर का भी जो माहौल है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। साथ ही छात्रों को भी संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है कि ये जो आपका साथी इसको नहीं समझ में आ रहा है या इसको नहीं पता लगता कि टीचर ने कहा है कि गणित की पुस्तक का पेज नंबर 100 निकाल करके 6ठा प्रश्न हम हल करेंगे, उसको शायद वाकई में समझ में नहीं आ रहा है। तो सुगम्यता वहाँ से भी आएगी कि हम अपने सभी छात्रों को संवेदनशील बनाएं। तो सुगम्यता कोई बहुत भारी भरकम सा शब्द नहीं है, ये बहुत सरल से वो छोटे छोटे व्यवहार हैं जो हम अपनी कक्षाओं में, अपने विद्यालयों में दिन प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैम, अगर यहाँ पे हम ये जानना चाहें कि स्कूल लेवल पर फिर कितना बदलाव आप देखते हैं
क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और किस लेवल तक हुआ है? बहुत हद तक हुआ है। काफ़ी स्कूल्स में तो आजकल मैं देखती हूँ रैंप बने हुए हैं, है ना? तो रैंप से बहुत सुविधा होती है, मैम आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर। तो रैंप से एक सुविधा ये भी होती है कि जो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कर ही पा रहे हैं, और कुछ अगर जो मेरे जैसी टीचर्स हैं जिनको शायद कभी कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए भी रैंप बेहतर है बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने के। और रैंप का खाली बच्चों और शिक्षकों के लिए ही सुविधा नहीं है। आप ये सोचो, आपको ऊपर वाली क्लास में कुछ फर्नीचर लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे? तो रैंप तो आपको उसमें भी मदद करेगा, है ना? और सुगम्यता का एक छोटा सा सरल उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हमारे सांकेतिक भाषा दुभाषीय हैं, है ना? तो सबका हमने ध्यान रखने की कोशिश की है ताकि ये जो सेशन है, सत्र है, इसका संदेश सब तक पहुँचे। बिल्कुल। और अभी मेरा जो अगला सवाल है वो प्रियंका मैम से है, और प्रियंका मैम से हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली साइंस जो है आपके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के जो लर्नर्स हैं उनके अंदर, आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ओके, थैंक यू मैडम जी। क्या आप स्लाइड का चेंज करेंगे? ओके, तो जैसे आपका ध्यान सकते हैं, हम बात करते हैं कि अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स की, तो उसमें जो साइंस सिम्टम्स जानने के लिए हमको ये जरूरी है कि आपको ये जानना है कि क्या लाइक अवेयरनेस की काफी जरूरत है। अगर आपको उस बात के बारे में जानकारी हो तो भी आप उस साइंस और सिम्टम्स देख के उसको पहचान पाएंगे। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो आपका जो है 21 मेंटल डिसऑर्डर्स को लिखा गया है, जिसमें 21 डिसऑर्डर को हम 5 हेडिंग में बांट सकते हैं, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका आता है, ब्लड डिसऑर्डर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो हम जब बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ये जानना है कि क्या अवेयरनेस है, क्या पेरेंट्स में और टीचर्स के इतना अवेयरनेस है कि वो उसको समझ पाए। और आपको जानकारी होगी कि जैसे CDIC होता है, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो कि 0 to 6 इयर्स बच्चों के लिए होता है बेसिकली। तो वहाँ पे अगर कहीं पे पेरेंट्स या टीचर्स नोटिस करते हैं कि कुछ डिफरेंट है या फिर कहीं पे कुछ अलग है, तो उसको वो रेफर कर सकते हैं प्रोफेशनल के पास। तो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर या CDIC जो होता है, वो बेसिकली 0 to 6 इयर्स बच्चों के लिए ही है, सो दैट अर्ली डिटेक्शन हो सके, अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो पाए। तो क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है। सिमिलरली आपका हर स्कूल में आजकल का नियम के हिसाब से आपका काउंसलर का पोस्टिंग है, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और प्रोफेशनल हेल्प भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर जरूरत पड़े तो रेफर भी कर सकते हैं। एंड आपको जैसे हर चीज के जानने के लिए साइकोलॉजी का रोल क्या है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉग्निटिव असेसमेंट कर सकते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, जिसमें हम जैसे आपने मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया साइंस एंड सिम्टम्स, तो बहुत सारे इनविजिबल सिम्टम्स भी रहते हैं। इनविजिबल साइंस जैसे टेस्ट ऑफ मेमोरी हम करते हैं, क्योंकि मेमोरी डिफिकल्टी फेस करते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड में कुछ चेंजेस आते हैं, वो भी हम असेस कर सकते हैं। एंड जब हम उसको रीअसेसमेंट कर सकते हैं ताकि हम देखें कि अगर इंटरवेंशन कितनी फायदेमंद पा रही है, और जो चेंजेस आए हैं, जो मेमोरी डिफिकल्टीज आए हैं या प्रोसेसिंग स्पीड में रिडक्शन आया है, तो हम स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, तो डील कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली इमोशनल इश्यूज आते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन के चलते, और सम बिहेवियर सिम्टम इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी सिम्टम्स, पेन और कॉग्निटिव जो फैटिग, these symptoms also as psychologist वहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेजिलियंस, क्योंकि हमको पता है कि हम उस चीज को डील करना है, तो रेजिलियंस जो टर्म है, जैसे कि उस कंडीशन से हम कैसे रेजिलियंस यूज करके हम बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो जो थेरापीज होते हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड थेरापी एविडेंस बेस्ड,
जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरापी हो जिसको हम शॉर्टली एक्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। और मैं अभी फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट को जाना चाहूंगी, तभी आप जान पाएंगे जब तो आपको उसके बारे में जानकारी हो। तो अवेयरनेस क्रिएट करना और प्रोफेशनल का हेल्प अर्ली टाइम पे सीख करना और मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंगली करने जरूरी है। प्रियंका मैम, थोड़ा सा आपसे ये जानना और चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने भी कहा और ये चीज़ हमें भी समझ में आती है कि मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एकदम विजिबल नहीं है कि हमें एकदम से पकड़ में आ जाए कि हाँ बच्चे का ये व्यवहार है तो ये शायद इसके पीछे ये एक कंडीशन हो सकती है। कॉग्निटिव असेसमेंट हो गया, इमोशन एंड कोपिंग का थेरेपी हो गया, बिल्डिंग रेजिलियंस हो गया, या CBT भी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी है। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो प्रोफेशनल्स हेल्प के बिना हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज ए पेरेंट और एज ए टीचर, क्योंकि मैं कक्षा में हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ एज ए टीचर, मैं घर पर हूँ एज ए पेरेंट, तो मेंटल इलनेस के वो क्या कुछ ऐसे व्यवहारिक लक्षण हो सकते हैं जो मैं बच्चों में देखूं और मुझे थोड़ी सी शंका हो या थोड़ा सा मैं आकलन कर पाऊं कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेना है कि नहीं लेना है। मैम, थोड़ा सा इस पर भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल मैडम। जैसे आपका डिप्रेशन हम देखते हैं तो बच्चों में और बड़े में डिप्रेशन का सिम्टम्स एक्सप्रेशन अलग होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का जो लैंग्वेज होता है वो बेसिकली प्ले होता है, तो प्ले इज द फास्ट लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं तो हम प्ले थेरापी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्ले बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली जब आप देखते हैं डिप्रेशन में, जब बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है तो उनका एक्टिविटी लेवल में बढ़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, इरिटेबल फील करते हैं, और जो उनका जो पैटर्न है बिहेवियर का उसमें काफी बदलाव आता है। जबकि अडल्ट केस में हम देख सकते हैं कि वो खुद एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि उदास लग रहा है या फिर और एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, पर बच्चों में अलग होता है। तो हमको ये जो जानकारी वो जरूरी है कि क्या सिम्टम्स डिप्रेशन का बच्चों में होता है, क्या सिम्टम्स डिप्रेशन का बड़ों में होता है, एंजाइटी सिम्टम्स उसी तरह का। तो हमको सिम्टम्स जानना है, पहचानना है। बेसिकली जैसे बच्चों में उनका जो प्रीवियस बिहेवियर में अगर बहुत सडन ड्रास्टिक चेंज आए तो वो एक वार्निंग साइन है कि क्यों आया है, हमको वो समझना है। तो हम बच्चों को साथ अगर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो ओपन अप नहीं होंगे। राइट। और मैम क्या जी सॉरी प्रियंका मैम, मैं बीच में तो बोल रही हूँ, पर इससे मुझे ना एक छोटी सी ये कहावत या आप ये कह लीजिए ऑब्जर्वेशन याद आती है कि बच्चा अगर चुपचाप बैठा है तो जान लीजिए कि उसको आपको उससे बात करने की ज़रूरत है, और बड़ा अगर चुपचाप बैठा है तो इसका मतलब सब सामान्य है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चुपचाप बैठते नहीं हैं, वो किसी ना किसी एक्टिविटी किसी ना किसी गतिविधि में लगे ही होते हैं, है ना? तो मुझे आपकी बात से ही ये समझ में आया। जी, माइन्यूट चेंज को ऑब्जर्व करना है और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो ओपन अप हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है, सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा ओपन अप हो पाए, क्योंकि कई बार होता है आजकल जैसे पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग हैं और टीचर्स के पास भी शायद क्लास में इतना टाइम नहीं है, तो फिर मैम ये सेफ एनवायरनमेंट हम कैसे बच्चों को दे पाएंगे? तो बेसिकली हम बच्चों को अगर बोलेंगे कि आप ये ना करो, सपोज मोबाइल जो है हम ना देखो, तो इससे बेटर है कि बच्चे देख के सीखते हैं। तो हम उनको अगर वर्ड की जगह हम एक्शन में दिखाए कि हम भी खाली टाइम पे आप बुक लेके पढ़ रहे हैं, उनके साथ नहीं अपने बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे, वो देख के सीखते हैं। तो हम अगर बच्चों को ये नहीं करना है बोलने से पहले उस समय में वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम उनको बोलते हैं कि आप मोबाइल ना देखो, और उस समय अगर हम बोलेंगे कि चलो हम थोड़ा सा पास में घूम के आ जाते हैं, तो हमको भी का होना है। उसके साथ साथ सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन ना देके एक रोल मॉडल बनना है ताकि वो बच्चे देख के सीखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आप, रोल मॉडल बनना जरूरी है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि हमारा फोकस, चाहे हम टीचर हों चाहे पेरेंट्स हो, हम अक्सर यही कहते हैं ये मत करो वो मत करो, तो हम बिल्कुल सकारात्मक सी अगर हम भाषा इस्तेमाल करें, अच्छा ठीक है मोबाइल इस्तेमाल करना है, लैपटॉप इस्तेमाल करना है, कर लो, लेकिन चलो पहले वॉक करके आते हैं,
हम कुछ इस तरह का भी मुझे लगता है अगर हम वार्तालाप रखेंगे तो ना शब्द का इस्तेमाल थोड़ा कम करें जो मुझे समझ में आता है, और कुछ सकारात्मक विकल्प हम अपने सामने ज़रूर रखें। जी और बिल्कुल यहाँ पर इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एज ए पेरेंट और आपके टीचर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वॉच करना है हर चाइल्ड का बिहेवियर कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और अगर कुछ सडन चेंज भी आया है तो वो भी टीचर्स की और हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हम बच्चों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब बच्चा इस तरह से बिहेव करे, ये एक्टिविटी करे, तो पेरेंट्स को वो उनको ज़रूरी करके दिखाना होता है, क्योंकि से वो अपने बड़ों को देखते हैं वैसा ही वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल पे ज़्यादा टाइम ना दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हो। लाइफ टफ है, बिज़ी है, उसको टफ हमने बना दिया है, बिज़ी ज़रूर है, लेकिन हाँ, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनकी सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ बच्चों की नहीं, हम बड़ों की भी बात करें तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है एक दूसरे के बारे में भी कि क्या बदलाव आ रहे हैं और क्यों बदलाव आ रहे हैं, और इन बदलावों पर ध्यान देना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू बिपाशा मैम। मैम, हाउ कैन एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स आइडेंटिफाई साइंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन चिल्ड्रन एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस is not only affecting children. Sometimes हमें ये point भी देखना पड़ेगा कि sometimes the mother can have multiple sclerosis and the father can have multiple sclerosis. It affects the child because घर में attention उतना नहीं मिलता या जो भी है. So all behavior disturbance in school does not indicate that the child has got MS. It can be one of the parents also, जहाँ उनको बच्चे को attention नहीं मिलता या घर में बहुत problem है या घर में upheaval है, the child becomes again depressed in school. So one teacher has to talk to the child, try to be a good friend and open up with them so that they share. When they share, the teacher can then take it to a further point with the parents. And MS is another thing. ये हर एक बैकग्राउंड के लोगों को, ये गरीब और रिच ज़रूरी नहीं है, हर बैकग्राउंड के लोगों को हो सकता है. वाई इट हैपन्स नोबडी नोज येट. रिसर्च बहुत चल रहा है, बट ये इनविजिबल सिम्टम्स स्पेशली लोग बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं कि किसी बच्चे ने बोला कि हमारे यहाँ दर्द है, बेटा ठीक हो जाएगा. हाँ, मैं गिर गई थी, आज 2 बार गिर गई, कोई बात नहीं बेटा, यू शुड रन मोर. नो, द चाइल्ड इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम. Whether it is a mother or teacher or father, सभी को नोट करना पड़ेगा कि ये बार बार गिरता क्यों है. राइट. एंड स्कूल सब जगह इंक्लूसिव होना पड़ेगा. Policies should be inclusive. If a child is not doing well in the class due to some problem, the child cannot be separated and kept aside कि भाई you are not doing well, these children are doing well. There should be no comparison. Inclusivity is very, and other children should be explained कि ये चीज़ हो सकता है जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा. he'll be doing it slowly. he is equally intelligent. empathy matters actually, and open conversation से बहुत कुछ solve हो सकता है with parents as well as with the child. जैसे identification के बारे में आप बोलेंगे. हाँ, मतलब जैसे sudden vision loss, बच्चा देख नहीं पा रहे, मैम I can't see the blackboard. Why? A child of say 16-year-old or 12-year-old should be able to see the blackboard. Either उसके आँख ऐसे नॉर्मल ख़राब है, मतलब नॉर्मल पार है, या देयर इज समथिंग. इफ दे से कि भाई क्लमजी हो रहा है, लिख नहीं पा रहा, और इवन दे आर स्टम्बलिंग, चलते चलते बार बार स्टम्बल कर रहे हैं, तो दे आर लाफिंग इट आउट बिकॉज देयर एज इज सच. वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली मैं बार बार स्टम्बल करती हूँ, घर में भी करती हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ. दे ट्राई टू होल्ड एंड बैलेंस देमसेल्व्स, बट इट इज़ नोटिसेबल. इवन बाकी बच्चों को अगर MS के बारे में पता है अच्छे तरह से पूरा क्लास में, देन दे विल ऑल्सो नोटिस एंड रिपोर्ट इट टू द टीचर. टीचर डजंट हैव सो मच ऑफ टाइम दैट एक एक बच्चे को देखे. मूड चेंज, मूड स्विंग बहुत होता है जब ये इस तरह का चीज़ें होता है कि MS इज सेटिंग इन. अभी से मूड स्विंग होता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, या टोटल आउटबर्स्ट छोटे छोटे चीज़ों में जिसमें होना ही नहीं चाहिए. देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. और कंप्लेन करने लगते, नहीं कुछ ऐसे लग रहा कि इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है बॉडी में. हाँ,
और the thing is all these things happen and it becomes all right. Again it happens after some time. तो जब एक बार की रिपोर्ट में आप शायद एक बार के कंप्लेन में नोटिस नहीं किए, बट जब दोबारा हो रहा तब उसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है. ओके तो मैम क्या हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल लेवल पे काउंसलर्स भी होते हैं तो क्या बच्चों के साथ उनका कुछ रेगुलर चेकअप ऐसा कुछ होता है कि बच्चों को देखना कि रेगुलरली आई मीन आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स हम बच्चों के बिहेवियर में चेंज देख रहे हैं तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरह का सेटअप है मैम? I feel that even the counselor should be educated about all these things what you are doing. एक बार वो खुद educated है कि ये चीज़ it's not only MS, there can be autism, there can be so many other things. तो बच्चे में ये हो सकता है, दे काउंसलर फिर उसी तरह से देखती हैं अगर उनके नॉलेज में होगा ये सब चीज़. तो they have to be educated, teachers will have to be educated, the public will have to be educated. It's not, the education is not meant for only 1 or 2 people, it's for the whole world, the education. तो वो नोटिस ड्रॉ कर सकते हैं. और सबसे ज़रूरी है जितनी जल्दी इसको हम लोग नोटिस में आए, जितनी जल्दी डायग्नोस करें, वो बच्चा ठीक रह सकता है. थिंग्स हैव चेंज्ड 10 साल पहले और अब 10 साल बाद बहुत. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ से 26 years आई एम वर्किंग वॉलंटरीली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो हम काउंसलिंग करते हैं, हम तरह तरह का हेल्प करते हैं. तो मैंने देखा 26 years बैक एंड टुडे देयर इज़ अ वास्ट चेंज. हाँ, आज ठीक रहते हैं. क्यों? यू आर अवेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स आर देयर. आज जैसे हम लोगों के इधर पता लगा कि 56% हैव हर्ड अबाउट MS. दिस इज़ अ रेयर थिंग. पहले आप 10 जने से बात करो, एक जने को मुश्किल से पता लगता था. टुडे 56% मीन्स इट इज़ वी हैव रियली गॉन अहेड. अवेयरनेस बहुत हुआ है और आप जैसे NCERT कर रहे हैं, इससे तो और आगे जाएगा चीज़ें. वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस. तो अवेयरनेस के ही ज़रिए हम एक बदलाव ला सकते हैं समाज में, और ये एक उसी की पहल है कि इनिशिएटिव है कि हम मेंटल हेल्थ को और भी अच्छे से समझें. और अगला जो मेरा सवाल है अब वो मैम से है, भारती मैम से, कि जो स्मॉल चेंजेस हैं वो किस तरह से एक बिग डिफरेंस ला सकते हैं अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो? देखो, स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंस तो डेफिनेटली ला सकते हैं और हम यही सोच करके हम हमेशा आगे बढ़ते हैं. और NCERT CIT ने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव्स और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को लेकर के बहुत काम किया है. एक तो ये जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मई के महीने में इन तीनों इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जी. ये भी एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत बदलाव लाएगी. जैसे विपाशा मैम ने भी कहा कि 56% लोगों को अभी आजकल पता है, और ये हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन के साथ सर्वे दिया था उसका एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं. दूसरी चीज़, अगर आप CIT की वेबसाइट पे जाएंगे या NCERT की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा है एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव्स. आप वहाँ जा कर के देखिए तो NCERT ने बहुत सारा काम जो एक्सेसिबिलिटी सुगम्यता के लिए किया है वो वहाँ पे आपको लिस्टेड दिखेगा. तो एक बार आप देख लीजिए, बाकी फिर दूसरे सेशंस में मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में उसके बारे में भी बात करूँगी. छोटे छोटे कदम हैं, सुगम्यता, सुलभता, सरलता सबकी सुविधा के लिए है. ये एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, समुदाय या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है. मैंने रैंप बनवाया या मैंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को बुलाया या मैं जो लिख रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, वो मैं दिखा भी रही हूँ, इससे सबका फ़ायदा होता है. रैंप ये तो नहीं मना करता ना कि नहीं आप एजेड हैं तो आप नहीं चलेंगे या आपको भारी सामान ले जाना है तो आप नहीं करेंगे. तो एक छोटा कदम सबके लिए सुविधाजनक हो सकता है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी हमारे सभी एक्सपर्ट्स का. आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर रीथिंकिंग मेंटल हेल्थ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक्सेसिबिलिटी पर हमने बातचीत की. और एक ये कंटिन्यूस हमारे एफर्ट्स हैं, अगर हम इस ओर बदलाव लाना चाहते हैं तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है. और ये जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल रिक्वायर करता है कि आप कितनी अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, एम्पैथी कितनी है और कलेक्टिव एक्शंस आपके कैसे हैं. तो इसी के ज़रिए टुगेदर वी कैन मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस. और साथ ही साथ जैसे कि शुरुआत में आपसे बात की थी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे
5 दिन का ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जो लास्ट डे है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एक क्विज़ जो है वो हम आपके साथ जनरेट करेंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि शुरुआत में ही आपको बताया गया कि काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और आप हमारा वेब पेज देख सकते हैं और आप वेब पेज पर जाकर आप जाइए और आप उसके बाद एक्टिविटीज़ में आप लॉगिन कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ के बाद आप जाएंगे लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम में और उसके बाद आपको जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के लिए है और आप रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद आप पहले तो सबसे पहले वेब पेज पर जाएं, एक्टिविटीज़ में जाएं। एक्टिविटीज़ में जाने के बाद आप जाएंगे हमारे लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम्स पर और यहाँ पर आपको सारी इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी कि हर दिन कौन सा प्रोग्राम है, आप किस प्रोग्राम के ज़रिए जुड़ेंगे। और रीथिंकिंग मेंटल हेल्थ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक्सेसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक बदलाव हमें लाना है और वो बदलाव शुरुआत हम ही से है। हम हर एज ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि इन्हें क्या हुआ है, कोई इंसान हंस रहा है लेकिन उसके हंसी के पीछे भी कुछ ज़रूरी छुपा है, तो उसको जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप पार्टिसिपेट हमारे इस प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आज तक के लिए ही खुले हैं और उसके बाद आप हर दिन देख सकते हैं कि हम किस किस विषय पर बात करेंगे। और जैसे कि कल हमारी बात होगी माइंड केयर पर, प्रायोरिटाइजिंग मेंटल वेलबींग इन एवरीडे लाइव्स, और साथ ही जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स उनके लिए फिर हमारा जो एक क्विज़ है वो हम शेयर करेंगे और वो आखिरी दिन होगा इस कोर्स का, उस दिन हम शेयर करेंगे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के साथ और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। विल बी अवॉर्डेड टू रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स स्कोरिंग 70% और हायर। और इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 30 डेज़ तक। और क्वेरी अगर आपकी कोई है इस सेशन से जुड़ी हुई, आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी पर आप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं dth.isl31@cit.nic.in पर आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और हम फिर आपसे जुड़ेंगे। जैसा कि कहा कि ये 5 दिन का कार्यक्रम है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे सभी गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़े। भारती मैम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, प्रियंका मैम एंड बिपाशा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अभी आपसे लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।